Hi everyone, welcome to MBA Pathshala. Hope you're doing well. So this is the next video in the Best of CAT LRDA practice series, right? So let's start with today's set, and this is from CAT 2020, right? Now and slot two, right? Yeah. Chalo, start करते हैं. So this is a conditionality and distribution based set, right? First, pause this video right here itself. Try the set first yourself, and then proceed on with the rest of the solution. Now, let's start reading this. Let's try to understand structure and solve this. The humanities department of a college is planning to organize 8 seminars, right? One for each of the 8 doctoral students A, B, C, D, E, F, G, H, right? So there are 8 students. 4 of them are from economics, 3 from sociology, and 1 from anthropology department, right? So I'll start writing the information, right? So eco, 4 students, sociology, 3 students, and 1 from anthropology, right? These are the distribution of the students according to their departments. Each student is guided by one among P, Q, R, S, and T. 2 students are guided by each of P, R, T, while 1 student is guided by each of Q and S, right? So these are the mentors, right? Professors. So they'll be belonging to one department also, right? So P can only belong to one department. That is also important. So the mentors are P, Q, R, S, and T. Right, and there was more information. 2 students are guided by each of PRT, right? So दो P, दो R, दो तुम्हारा T, and while 1 student each is guided by QNS, right? So Q एक student or S 1 student, so that totals to 8. Perfectly fine. Next, each seminar is to be scheduled in one of 4 consecutive 30-minute slots starting from 9 a.m. Till 10:30, right? So 9 से 9:30, 9:30 से 10, 10 से 10:30, and 10:30 से obviously 11, right? So these are the 4 slots. I'll again go ahead and write this. So 9 a.m. का slot है. Then we have a 9:30 slot. Then we have a 10 slot, and then finally we have a 10:30 slot. Okay. Now let's read further into this. So 4 slots है on the same day. More than one seminar can be scheduled in a slot. So एक particular slot में एक से ज़्यादा seminar आ सकते हैं, and obviously आने पड़ेंगे because there are 8 seminars to be held in these 4 slots, right? So multiple seminars in a slot is possible provided the guide is free. तो जो भी उस particular student का guide होगा, अगर वो guide free होगा, सभी वो possible है, ठीक है? Only 3 rooms are available, and hence at most 3 seminars can be scheduled in a slot. So multiple तो possible है, but we cannot go beyond 3, right? So maximum किसी भी particular slot में आपके 3 seminars organize करा सकते हैं, ठीक है? Students who are guided by the same guide must be scheduled in consecutive slots. Now ये थोड़ा important है कि जैसे for example अभी तुम्हें दिख रहा है कि P 2 स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा होगा, राइट? सो P के ये जो दोनों स्टूडेंट्स होंगे वो कंसेक्यूटिव स्लॉट्स। नाउ कंसेक्यूटिव स्लॉट का यहाँ पे मीनिंग क्या होगा? जैसे 9 9:30 9:30 10 10:30, राइट? 10 10:30 ऐसे। परफेक्टली फाइन, राइट? सो P के ये दो हमारे कंसेक्यूटिव होंगे। सिमिलरली आर के भी 2 कंसेक्यूटिव होंगे और टी के भी 2 कंसेक्यूटिव होंगे, और दो कंसेक्यूटिव होने की तीन ही पॉसिबिलिटी थी, 9 9:30 9:30 एंड 10 10 10:30, इसीलिए 3 लोग का तुम्हारा 2 2 2 ईच भी दिया हुआ है, राइट? सो एवरीथिंग इज फिटिंग इन परफेक्टली। नाउ लेट्स रीड द कंडीशन। बेसिकली हमें यही फिगर आउट करना है कि किस स्लॉट में कौन सा स्टूडेंट प्रेजेंटेशन दे रहा होगा, एंड ही और शी इज बीइंग गाइडेड बाय विच ऑफ द मेंटर्स, ठीक है? सो ये हमें पूरा एक कॉम्बिनेशन बताना है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेटमेंट। व्हाट डू वी हैव? Let's start with the first statement. Seminars by students from economics are scheduled in each of the 4 slots. Right. So ये थोड़ा सिंपल स्टेटमेंट हो गया कि हर स्लॉट में एक आपका सेमिनार इको का तो हो ही रहा है, इको इको एंड इको, तो इकोनॉमिक्स के 4 हमारे होंगे। अभी ये कौन से स्टूडेंट है ये अपने को नहीं आइडिया, बट इकोनॉमिक्स इन ईच ऑफ द 4 slots. Okay, fine. That is the first point. Second, A is the only seminar that is scheduled at 10 a.m. So 10 a.m. पे A का अकेला सेमिनार है. So A has to belong to this economics. So economics
ये स्टूडेंट कौन है, ए। और नोटेशन अपने लिए फॉलो कर लेंगे कि नाम बाहर रखेंगे और ब्रैकेट के अंदर हम उसका मेंटर लिख लेंगे, ठीक है, वेर एवर वी गेट दैट इन्फॉर्मेशन। सो इज द ओनली सेमिनार दैट इज शेड्यूल्ड एट 10 AM, तो 10 AM पे टोटल एक ही आपका सेमिनार है, सो दिस विल बी इट। 10 AM A is being guided by R, so ये भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई। सो इकोनॉमिक्स में एक नाम पता चल गया तुम्हें, ए। लेट्स ऑल्सो राइट दीज डाउन, डबल एंट्री करते हैं। इकोनॉमिक्स में एक नाम पता चल गया तुम्हें, एंड आर ये भी पता चल गया, इज एन इकोनॉमिक्स प्रोफेसर, ये भी आइडिया हो गया, राइट, इकोनॉमिक्स प्रोफेसर है ये। इसके दो स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट अभी अपने को पता चला है, दैट इज ए, राइट। So that is the second point. Third, F is an anthropology student whose seminar is to be scheduled at 10:30 AM. So ये भी हमारा clear cut ही है। So F is an anthropology student. तो 10:30 पे आपका F सेमिनार दे रहा होगा, belonging to the anthropology department. So यहाँ पे एक और है anthro, एटलीस्ट एक और है एंथ्रो, द स्टूडेंट इज एफ, उसका मेंटर हमें नहीं पता। और इसको यहाँ पे भी लिखना स्टार्ट करते हैं। सो एंथ्रोपोलॉजी एक ही स्टूडेंट होने वाला था, सो दैट इज एफ। इसका मेंटर अभी हमें आइडिया नहीं है। ओके, डेफिनेटली इन क्या होगा, इन वंस में से होगा, है ना, बिकॉज एंथ्रोपोलॉजी का एक ही सेमिनार होने वाला है। सो वन में से कोई होगा, सो आइदर दिस इज क्यू और एस, डेफिनेटली, ठीक है। ओके, टू वाला इसलिए नहीं हो सकता बिकॉज फिर इसको गाइड कर रहा है तो किसी और को भी गाइड करना ही पड़ेगा। सो बट एंथ्रोपोलॉजी तो और है ही नहीं, राइट, इसलिए यहाँ पे बोल रहा हूँ मैं कि क्यू एन एस में से कुछ एक आएगा। आगे बढ़ते हैं। सो दिस थर्ड पॉइंट इज नाउ डन, ठीक है। नेक्स्ट, द सेमिनार ऑफ अ सोशियोलॉजी स्टूडेंट इज शेड्यूल्ड एट 9 AM। तो 9 AM पे एक सोशियोलॉजी वाला सेमिनार तो है, स्टूडेंट कौन सा है वो मुझे अगेन आइडिया नहीं है। फोर्थ पॉइंट इतना ही कहता है बस। नाउ द फिफ्थ पॉइंट, बी एंड जी आर बोथ सोशियोलॉजी स्टूडेंट्स। अब बी एंड जी आर बोथ सोशियोलॉजी स्टूडेंट यहां लिख सकते हैं एटलीस्ट, बी एंड जी आर बोथ सोशियोलॉजी स्टूडेंट्स। विद दैट एक्शन आई कैन, नो नो अभी नहीं, एक और सोशियोलॉजी वाला आना बाकी है, बट बी एंड जी आर सोशियोलॉजी स्टूडेंट्स whose seminars are scheduled in the same slot, same slot मतलब या तो 9 या 9:30 या 10 या 10:30 ऐसा होना चाहिए। सो क्या कह रहा है, बी एंड जी दो स्टूडेंट्स, ये सोशियोलॉजी वाले हैं, सोशियोलॉजी, sociology whose seminars are scheduled in the same slot, the seminar of an economics student, एक स्टूडेंट और होगा इकोनॉमिक्स वाला, who is guided by T। तो ये जो भी स्टूडेंट होगा is being guided by T, ऐसा कुछ सिनेरियो, ठीक है। स्टूडेंट का नाम नहीं है ये, उसके प्रोफेसर का नाम है, being guided by T is also scheduled in the same slot। तो ये तीनों लोग एक ही सिंगल स्लॉट में आपके आने चाहिए, राइट, ये तीनों एक ही सिंगल स्लॉट में आने चाहिए। अब कहीं ना कहीं एक रिस्ट्रिक्शन थी ना हमारे पास, किसी भी एक पर्टिकुलर स्लॉट में मैक्स टू मैक्स 3 लोग आ सकते थे। यहाँ तो और कोई है ही नहीं, यहाँ पे तो 1 है। क्या ये 3 लोग यहाँ पे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। इकोनॉमिक्स चलो आपने बोल भी दिया, मान लो इट इज द सेम पर्सन हु इज बीइंग गाइडेड बाय टी, बट यहाँ पे फिर तुम्हें 2 लोग देने पड़ेंगे सोशियोलॉजी वाले, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो ये जो आपका पूरा फिट होना है ये 10:30 वाले स्लॉट में नहीं है, 10 वाले स्लॉट में नहीं है। सो आइदर ये हमारा फिट होगा 9 वाले स्लॉट में या फिर हमारा 9:30 वाले स्लॉट में। अब 9 वाले में चेक करें हो पाएगा क्या। एक इकोनॉमिक्स वाला पर्सन चाहिए बीइंग गाइडेड बाय टी, तो ये वो पर्सन हो सकता है। इन दो सोशियोलॉजी से एक सोशियोलॉजी ये हो सकता है और एक और सोशियोलॉजी आ सकता है, सो डेफिनेटली यहाँ फिट हो सकता है। यहाँ पे तो और आराम से फिट हो जाएगा बिकॉज इकोनॉमिक्स ये वाला पर्सन हो जाएगा बीइंग गाइडेड बाय टी, और 2 सोशियोलॉजी वाले नाम लिख सकते हैं। सो ये अभी फॉर द टाइम बिंग दोनों जगह पॉसिबल लग रहे हैं कि फिट हो जाएंगे, ठीक है। सो आई विल टेक दिस स्टेटमेंट, इसका मीनिंग तो हमने यहाँ पे लिख ही लिया है। Now, let's proceed further to the sixth point. P who is guiding both B and C. Now, this is important. P who is guiding both B and C. अब समझो P हमारा B and C दोनों को गाइड कर रहा है, तो P का हम कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा डिपार्टमेंट है, ये बता सकते हैं। क्यों बता सकते हैं? बिकॉज B हमारा सोशियोलॉजी का है। तो B अगर हमारा सोशियोलॉजी का है, दैट मीन्स P इज अ प्रोफेसर ऑफ सोशियोलॉजी। तो पी अगर हमारा सी को भी गाइड कर रहा है, दैट मीन्स सी भी हमारा वो थर्ड स्टूडेंट हो जाएगा जो सोशियोलॉजी में आपका थीसिस या सेमिनार प्रेजेंट कर रहा है, राइट। सो दीज आर इंटर रिलेटेड, एंड विद दैट एक और ब्रेक थ्रू हो गया कि अब इकोनॉमिक्स के वो जो 4 नाम है वो बता सकते हो आप। तो ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच, तो ए डी ई एच वो 4 लोग हो जाएंगे इकोनॉमिक्स वाले, BGC हमारे सोशियोलॉजी वाले, एंड F is obviously from anthropology. Now again, let's go back to that statement. क्या बोला इसने? P who is guiding both B and C. तो P हमारा B and C दोनों को गाइड कर रहा है,
हैज स्टूडेंट शेड्यूल्ड इन द फर्स्ट टू स्लॉट्स। तो पी हमारा जो सोशियोलॉजी वाला प्रोफेसर हो गया, बिकॉज बीएनसी को गाइड कर रहा है, राइट। इन द फर्स्ट टू स्लॉट्स आपको सोशियोलॉजी दिखना चाहिए, राइट। अब एक सोशियोलॉजी यहाँ है, तो एक डेफिनेटली सोशियोलॉजी यहाँ पे आएगा ही आएगा, वो तो क्लियर है। अब एक और सोशियोलॉजी आपका आना बाकी है, राइट। एक और सोशियोलॉजी आना बाकी है, और ये वाली कंडीशन के साथ मैच करोगे तो आपको समझ में आएगा, या तो वो सोशियोलॉजी यहाँ है, या तो दूसरा सोशियोलॉजी, आई मीन तीसरा सोशियोलॉजी जो बच गया है वो या तो यहाँ है, ठीक है, इस कंडीशन को फिट करने के लिए, ठीक है। और पी हमारा बोथ बी एन सी को गाइड कर रहा है इन द फर्स्ट टू स्लॉट्स। तो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ कि ये जो भी स्टूडेंट होगा, मतलब एक स्टूडेंट को एटलीस्ट 9 AM स्लॉट में तो पी गाइड करेगा, और एक स्टूडेंट को यहाँ पे पी गाइड करेगा। अब वो दूसरा वाला कौन पर्सन आएगा वो देखते हैं कौन आएगा, बट यहाँ पे डेफिनेटली आपका पी तो होने वाला है, राइट। ठीक है, सो बीइंग गाइडेड बाय पी और बीइंग गाइडेड बाय पी। अब वो सोशियोलॉजी देखते हैं कौन सा आएगा और वो कौन सा प्रोफेसर होगा, अभी अपने को नहीं पता। Has students scheduled in the first two slots? That is perfect. And finally, we have this one more point. A and G are scheduled in the two consecutive slots. Now, this would break this down. Because क्या बोल रहा है, A and G जो दो स्टूडेंट्स हैं, जिसमें आपको पता है कि A यहाँ पे है, एंड आपको ये पता है कि G इज अ सोशियोलॉजी स्टूडेंट, तो G या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, राइट। या तो 9:30 स्लॉट में होगा या तो 9 स्लॉट में होगा, बिकॉज सोशियोलॉजी वाले सारे यहीं पे हैं। सो ए एंड जी हैव टू बी कंसेक्यूटिव, तो कंसेक्यूटिव या तो ये हो सकता था या तो ये हो सकता था, ये तो हो नहीं सकता बिकॉज जी उधर जाएगा ही नहीं, जी तो हमारा इधर है। सो ए एंड जी हैव टू बी कंसेक्यूटिव, मतलब यहाँ पे जी डेफिनेटली होने वाला है। तो अब ये भी समझो, पी यूज गाइडिंग बोथ बी एंड सी, तो बी एंड सी इन सम ऑर्डर आएंगे, बी एंड सी इन सम ऑर्डर आते, और ए एंड जी को कंसेक्यूटिव होना है, तो इसका मतलब यहीं पे तुम्हारा वो तीसरा सोशियोलॉजी ये वाली कंडीशन होने वाली है। और सोशियोलॉजी ए एन जी कंसेक्यूटिव बोल रहा है, तो यहाँ पे स्टूडेंट कौन हो गया तुम्हारा, जी हो गया। क्लियर, सो द स्टूडेंट इज जी। अभी उसका अपने को प्रॉफ नहीं पता, उसका मेंटर नहीं पता है, बट जी यहाँ पे डेफिनेटली आएगा। अच्छा, ऑल्सो जी के ही सेम स्लॉट में बी आना है, तो बी एन सी की जो दो चॉइसेस थी उसमें जी के सेम स्लॉट में कौन आ जाएगा, बी आ जाएगा, और इसी के साथ यहाँ पे कौन फिक्स हो जाएगा तुम्हारा, सी फिक्स हो जाएगा, राइट। सो दैट इज डन। अब स्टेटमेंट तो हमारे खत्म हो चुके हैं। अब एक काम करते हैं, थोड़ा हम लॉजिक लगाना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि क्या क्या कर सकते हैं, हमारे ये जो प्रोफेसर है उनके कंसेक्यूटिव स्लॉट्स होने चाहिए ना, वाली कंडीशन तो थी, स्टूडेंट्स हु आर गाइडेड बाय द सेम गाइड मस्ट बी शेड्यूल्ड इन कंसेक्यूटिव स्लॉट, इसको अप्लाई करें तो पी हमारा दो कंसेक्यूटिव स्लॉट में दिखना चाहिए, पी दिख गया, परफेक्ट। आर हमारा दो कंसेक्यूटिव स्लॉट में दिखना चाहिए। अब आर जो है इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर है, सो आर कंसेक्यूटिव स्लॉट में कहाँ आएगा, या तो यहाँ या तो यहाँ। अच्छा, बट ये हमारी ये भी कंडीशन अभी हमें फिक्स कर देनी चाहिए, ये जो इकोनॉमिक्स वाला पर्सन है जो भी है इज एक्चुअली बीइंग गाइडेड बाय टी। तो आर जो तुम्हारा दो कंसेक्यूटिव होना है वो यहाँ पे हो नहीं सकता, राइट। आर दो कंसेक्यूटिव तुम्हारा यहाँ पे हो ही नहीं सकता, तो आर कंसेक्यूटिव बिकॉज इकोनॉमिक्स का होना है, इकोनॉमिक्स में यहाँ टी आ गया, तो दूसरा आपका आर कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, तो बीइंग गाइडेड बाय आर, राइट। सो दैट इज ऑल्सो परफेक्टली डन। एंड बचा आपका दो बार टी आना, तो एक बार टी यहाँ है और तो यहाँ पे तो स्पेस ही नहीं है, तो वो टी हमारा यहाँ पे होगा। तो इकोनॉमिक्स में वो जो लास्ट आपका स्टूडेंट है जो भी है, नाम नहीं पता, बट ही और शी इज एक्चुअली बीइंग गाइडेड बाय टी, राइट। सो टी वाला भी हमारा एक्चुअली में इकोनॉमिक्स है, थोड़ा और लिख लेते हैं, टी इज ऑल्सो इकोनॉमिक्स, देन आर इज ऑल्सो इकोनॉमिक्स, है ना, दिस इज ऑल्सो इकोनॉमिक्स। तो ये दो और दो हमारे ये कवर कर लेते हैं स्टूडेंट्स को। डू वी नो द नेम्स राइट नाउ, डू वी नो द नेम्स, ए डी ई एच आपके इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है ना, तो ए आपको अभी फिलहाल पता है, ए डी ई एच, राइट। ये डी ई एच हमारा दिस दिस एंड दिस में आएंगे इन सम ऑर्डर, वी डोंट नो राइट नाउ। बचा तुम्हारा बी जी सी, बी जी सी में आपको बी जी सी ऑलरेडी पता है, ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो डन। एफ का आपको यहाँ पे आइडिया है, ठीक है। तो स्टूडेंट वाइज तो देख लिया हमने, पी का हमारा हो गया, आर का ठीक है, आर के दो कंसेक्यूटिव स्लॉट, टी के हमारे दो कंसेक्यूटिव स्लॉट, ऑब्वियसली हम स्टूडेंट अभी फिलहाल नहीं बता सकते। व्हाट अबाउट क्यू एन एस, अब क्यू एन एस कौन होंगे, क्यू एन एस डेफिनेटली फिर हमारे एक ये स्टूडेंट को गाइड करने वाला और एक ये स्टूडेंट को गाइड करने वाला प्रोफेसर होगा। सो वी कैन राइट दैट डाउन, क्यू स्लैश एस, एस स्लैश क्यू।
right? So that is all the information we can actually derive in this. Now we should actually go to the problems to get more done into this. Now क्या दिया हुआ है, which one of the following statements is true, right? इसमें से कौन सा कंडीशन आपका ट्रू है वो बस चेक करना है. So scheduling वाला है. Only one seminar is scheduled in the second slot. Second slot में only one seminar, wrong. Three seminars scheduled in the last slot, wrong. Three seminars scheduled in the first slot, wrong. Two seminars are scheduled in the first slot, that is definitely correct. D option. सेकेंड, हु ऑल आर नॉट गाइडिंग एनी इकोनॉमिक स्टूडेंट. तो हमें पता है इकोनॉमिक स्टूडेंट को कौन गाइड कर रहा है, ये आर और ये टी, ये दो दो चार लोग को गाइड कर देंगे. सो पी क्यू एंड एस, पी क्यू एंड एस आर नॉट गाइडिंग एनी इकोनॉमिक स्टूडेंट, दैट इज ऑप्शन सी. थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नेसेसरली ट्रू, राइट? Q इज गाइडिंग G. अब चेक करना पड़ेगा, बहुत सारी पॉसिबिलिटी है. Q इज गाइडिंग G, नॉट नेसेसरली ट्रू. Q G को गाइड भी कर सकता है, Q हमारा F को भी गाइड कर सकता है. तो दिस इज नॉट necessarily true. H is an economic student. H is an economic student. That is perfectly fine. So it was easy हो गया. That is option B. Fourth conditional, if D is scheduled in a slot later than Q, तो D हमारा Q के बाद आना चाहिए. अभी नोटिस करो, Q यहाँ पे फिर नहीं हो सकता ना, क्योंकि इसके बाद कोई नहीं आ सकता. तो D अगर Q के बाद आना है तो मतलब यहाँ Q आया, तो उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे S आया. एंड D इज scheduled in a slot later than Q, तो Q के बाद हमारा D आएगा. D is actually an economic student, so D को यहाँ पे आना पड़ेगा, राइट? तो ये चीज फिक्स होगी विद रिस्पेक्ट टू दिस प्रॉब्लम ऑब्वियसली. देन विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू. पहला, ई एन एच आर गाइडेड बाई टी. अभी यहाँ पे अगर डी आ जाएगा, डी अगर आ गया, तो ई और एच ही हमारे इकोनॉमिक स्टूडेंट बचे, तो वो दोनों ऑटोमेटिकली यहाँ पे आएंगे. सो दिस फर्स्ट स्टेटमेंट इज एक्चुअली ट्रू, राइट? ई एच विल बी गाइडेड बाई टी. सेकेंड, जी इज गाइडेड बाई क्यू. जी इज गाइडेड बाई क्यू, ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा बिकॉज एस यहाँ पे आने वाला है ना. So the second statement is also true. So answer क्या हो जाएगा, both 1 and 2. That is B option. The fifth problem, let's just remove this. Let's not get confused in this. So the last problem, if D is scheduled in a slot immediately before Q, immediately before Q आपका क्या आना चाहिए, D आना चाहिए. अगेन उसी के करस्पॉन्डिंग आपका कंडीशन है. जैसे Q यहाँ पे अगर हुआ, सपोज Q अगर यहाँ पे हुआ, तो D इमीडिएटली बिफोर यहाँ आना चाहिए था, बट यहाँ पे तो A है, राइट? सो डी यहाँ फिट नहीं हो पाएगा. सो क्यू कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा. सो क्यू यहाँ पे आ गया, अब की बार एस यहाँ पे फिक्स हो गया. एंड नाउ लिख लेते हैं, वी डोंट हैव एनी मोर प्रॉब्लम्स. तो ये क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा. सो ये डी हो गया, ये ए हो गया. दैट मीन्स ई एन एच, ये दोनों इन सम ऑर्डर आएंगे. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरली ट्रू, राइट? नॉट नेसेसरली ट्रू, डेफिनेटली ट्रू नहीं होना चाहिए. जी इज गाइडेड बाई क्यू, डेफिनेटली ट्रू है. D is guided by T, definitely true है. F is guided by S, F is guided by S, ये भी definitely true है. So ये हमारा definitely true नहीं होना चाहिए. E is guided by R. तो मैंने बोला E आपका या तो यहाँ आएगा या तो आपका यहाँ आएगा. तो E definitely R से गाइड हो रखा होगा. That is not true, right? Definitely not true. Could be true, but definitely not true. Hence, answer will be option D. Right, a wonderful problem. So based on the difficulty, I would actually classify this to like around the moderate side, right? Because this can be done and not too many complicated conditions. That is what actually makes a set difficult or moderate, right? Definitely not an easy one, but yes, somewhere on the moderate lines, right? Let me know how did you fare in this. If you have any doubts, you can just put that in the comments. Thank you.